Assalamu alaikum student, how are you all? Today I am going to start the new topic, that is the solubility. In this topic we will discuss the definition of solubility, or you can say the meaning of the solubility and the factors affecting the solubility. First of all, what do you mean by the solubility? The solubility of a substance is the amount of substance, that is the solute, that dissolve in a given quantity of a solvent at a given temperature to produce a saturated solution. Solubility means the amount of a substance. Amount of a substance means solute, which is dissolved in a given quantity of a solvent at the given temperature to produce a saturated solution. Solubility is usually expressed in grams of solute per 100 gram of solvent. आप solubility को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, the amount of substance that is a solute जो कि amount of substance है which is dissolved in a given quantity of a solvent, जो कि हमारे पास जो quantity of solute उसमें dissolve हो जाए at the given temperature, जितना temperature हमें दिया गया हो उस पे, to produce a saturated solution. What do you mean by the saturated solution? The solution which contains the maximum amount of a solute at the given temperature. No more solute can dissolve in it. इससे ज़्यादा solute dissolve नहीं हो सकता, which contains the maximum amount of solute. Solubility is usually expressed in grams of solute per 100 gram of solvent. Another definition of solubility: solubility is the greatest amount of solid that saturates 100 gram of solvent at any given temperature. Easy words में अगर आप solubility को define करना चाहें, the amount of a substance dissolved in a given quantity of a solvent at a given temperature to produce a saturated solution. Here there is a diagram of solubility. Solubility mean it is defined as the amount of a given substance. Amount of a given substance किसे कहा जा रहा है? Solute को कहा जा रहा है. That can be dissolved in a certain amount of a solvent. जो कि हमारे पास एक certain amount of a solvent दिया गया हो उसमें dissolve हो जाए. It's called the solubility. Solubility is defined as the amount of a given substance that is solute that can be dissolved in a certain amount of a solvent at the given टेम्परेचर जो हमारे पास टेम्परेचर हो उसमें हमारे पास जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो वो डिसॉल्व हो जाए किसमें, सर्टेन अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट. अब यहाँ पे सॉल्यूट क्या मतलब है? द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट, जो बहुत कम क्वांटिटी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, इज कॉल्ड द सॉल्यूट. What do you mean by the solvent? The amount of a substance that is present in the larger amount या larger quantity in a solution is called the solvent. जो कि ज़्यादा quantity में present होगा, it's called solvent. For example, if we take the beaker full of water and add 1 tablespoon of salt, that is the sodium chloride NaCl, तो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड होगा that is our solute, क्योंकि वो कम मिकदार में कम क्वांटिटी में है, और वाटर which act as a solvent जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में है, ज़्यादा मिकदार में है. It's called the solvent. Solubility is defined as amount of a given substance जिसको हम solute कहते हैं, that can be dissolved in a certain amount of a solvent at a given temperature is called the solubility. What are the factors that affect the solubility? There are the 4 main factors that affect the solubility. Number 1 is the temperature. Number 2 is the pressure. Pressure is only for the gases, यानी liquid and solids के लिए नहीं होगा, only for the gases के लिए हम word use करेंगे pressure. Nature of solute and nature of solvent. One by one हम चारों जो factors हैं, they can affect the rate of solubility, यानी solubility पे affect करते हैं. Temperature, pressure, nature of solute and nature of solvent. First one is the temperature. What is the effect of temperature on solubility? The solubility of a solid in liquid increase with increase in temperature. अगर हम solubility की बात करें, solid in a liquid. Solid in a liquid means आपने एक बीकर लिया, सेम प्रीवियस एग्जांपल, उसमें आपने सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, सब एक ही चीज है. आपने जैसे ही उसमें कॉमन सॉल्ट ऐड किया तो वो क्या है? सॉलिड इन अ लिक्विड है, यानी जो सॉल्यूट है वो सॉलिड फॉर्म में है और सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड फॉर्म में है. सो the solubility of a solid in a liquid increase with increase in temperature. इस चीज की solubility क्या होगी? Increase होगी with the increase of temperature. Solubility of a solid in a liquid or liquid in a liquid increase with increase in temperature. अगर हम solid liquid की बात करें, liquid liquid की बात करें, तो इनमें क्या होगा? Solubility increase होती है with increase in temperature.
However, the solubility of gases decrease with the increase in temperature. अगर हम gases की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, solubility decreases with the increase in temperature. In the case of solid in liquid and liquid in liquid, solubility is increased with increase in temperature. If we talk about the gases in the form gases अगर हम लेंगे तो इनमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो solubility क्या हो जाएगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी. अब मैं आपको लिक्विड एंड लिक्विड की एग्जांपल देती हूँ. लिक्विड एंड लिक्विड मीन्स कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं. लिक्विड एंड लिक्विड मीन्स कि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड हो एंड सॉल्वेंट भी लिक्विड हो. तो लिक्विड एंड इन लिक्विड जो है वहां पर solubility will increase with increase of temperature. If you're talking about the solid and liquid, it means solute जो है in the form of solid हो and solvent जो है in the form of liquid हो, like salt and water का combination ले लें या salt and sugar का ले लें. So in this case also when we increase the temperature, solubility will also increase. In the case of gases, solubility of gases in a liquid decrease with increase in temperature. अगर हम gases की बात करते हैं, if we increase the temperature, temperature increase करेंगे तो solubility will decrease. For example, example क्या होगी इसकी, bubbles of air are seen inside a cold water when it is warm. bubble अगर हम देखें कोल्ड वाटर के बॉटल अगर लेते हैं, उसको पहले ठंडा करते हैं, उसके बाद जो है उसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो आप देखेंगे उसके अंदर बबल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं. इसका मतलब है solubility will decrease with increase of temperature. ये इसकी एग्जांपल है. In the case of solid in liquids and liquid in liquid, if we increase the temperature, solubility will increase. But in the case of gases in liquid या liquid in gases, अगर ये बात करते हैं gases in a liquid, solubility will decrease when we increase the temperature. This is the effect of solubility ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स. यानी अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो या डिक्रीज करते हैं तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑन टेम्परेचर. व्हाट हैपन when we heat a liquid having dissolved gases, bubbles are formed and gases escape from it. Similarly, solubility of partially miscible liquids like increase with increase in temperature. चेंज इन टेम्परेचर हैज डिफरेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. कह रहे हैं कि डिफरेंट कंपाउंड्स का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे डिफरेंट होता है. हर कंपाउंड जो है वो अपने तरीके से सॉल्युबल होता है, यानी उसका एक अपना मेथड होता है, उसमें जो है वो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है. पर हम अगर नॉर्मली बात करें तो गैसेस में इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी, एंड सॉलिड इन लिक्विड में एंड लिक्विड इन लिक्विड में इफ इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. नंबर 2 यहाँ पर है प्रेशर. अगर हम प्रेशर की बात करें, ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रेशर जो है ओनली गैसेस के मामले में होगा, यानी जब हम गैस स्टेट की बात करेंगे तभी हम प्रेशर की बात करेंगे. The solubility of all gases in any solvent increase as the pressure of the gas above the solution increase at the constant pressure. क्या कह रहे हैं कि अगर हम तमाम गैसेस की बात करें, solubility will increase when we increase the pressure. Pressure directly proportional है solubility के. एक लॉ यहाँ पे दिया है, इट्स कॉल्ड द हेनरीज लॉ, दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट, उनका नाम हेनरी था. उन्होंने इस लॉ को दिया. व्हाट अबाउट दिस लॉ, क्या है इस लॉ में क्या बताया गया. अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. क्या कह रहे हैं कि if we increase the pressure of gas, the solubility of a gas will also increase. Directly proportional means कि अगर हम हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक हमारे पास प्रेशर है, एक सॉल्युबिलिटी. अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करते हैं तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो जाएगा. हेयर वी हैव अ एम. यहाँ पर एम का मतलब है द अमाउंट ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड. M means the amount of a gas dissolved. This is the proportionally sign का sign है, proportionality का sign है कि amount of the gas dissolved is directly proportional to the pressure. It means कि when we increase the pressure of a gas, the solubility of a gas is also increased. Okay, M is equals to Kp. Capital K is a constant. जब हम proportionality के sign को remove करते हैं mathematically, अगर आप इसको देखें तो हम एक constant show करते हैं. So here K is the constant. What Henry said उनके लॉ में क्या था, the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of gas. It means if we increase the pressure of a gas,
the solubility of a gas is also increases. This is the Henry's law. एग्जाम्पल क्या है इसकी? This effect is used in manufacture of bottled soft drinks as Coca-Cola, example दी गई है 7 Up. Have you ever seen cold drinks जो कार्बोनेटेड बॉटल्स होती हैं? हम उन्हें कार्बोनेटेड बॉटल्स कहते हैं बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है. तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करके उन लिक्विड्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सॉल्युबल किया जाता है. यानी अगर हम उसमें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, कोका कोला 7 Up, देयर सो मेनी जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हैं, दीज आर कॉल्ड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिकॉज उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सॉल्युबल होती है, उसमें होती है, ऐड हुई भी होती है. सो व्हाट हैपन, किस तरह से होता है कि हम वी विल इंक्रीज द प्रेशर, गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और उससे क्या होता है, वो जो गैस होती है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो सॉल्युबल हो जाती है. किसमें? जो लिक्विड हमारे पास होता है बॉटल्स में, उसमें इट इज सॉल्युबल. द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर. अगर हम सॉलिड और लिक्विड्स की बात करें तो वहां पर जो है वो सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. क्यों? क्योंकि द सॉलिड मॉलिक्यूल एंड द लिक्विड मॉलिक्यूल, इनमें क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है. सॉलिड तो टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड कैन इजीली मूव. तो इस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का. प्रेशर की जब हम बात करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो हमारे पास सिर्फ किसके मामले में आएगा, जो है वो गैसेस के मामले में आएगा. दिस इज द सेकेंड फैक्टर जो इफेक्ट करता है रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी को. अब अगर हम देखें नेचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूट, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट. एंड सॉल्वेंट क्या होता है? द सब्सटेंस व्हिच इज सब्सटेंस ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट या ग्रेटर क्वांटिटी. एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, इफ यू टेक द 1 glass of water and add 1 tablespoon of sugar, तो sugar is called solute एंड वाटर विल बी सॉल्वेंट. क्यों? सॉल्यूट जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी में, शुगर था स्मॉल क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में था, इट्स कॉल्ड सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या है? वाटर, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद था. अब देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी. जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के हिसाब से इफेक्ट क्या होता है सॉल्युबिलिटी का. इट इज जनरली सीन दैट लाइक डिसॉल्व लाइक. Polar solute easily dissolve in polar solvent, whereas non-polar solute easily dissolve in non-polar solvent. First of all, what do you mean by the polar and what do you mean by the non-polar? इस टर्म को समझना जरूरी है. What do you mean by the polar and what do you mean by the non-polar? I told के polar solute easily dissolve in polar solvent, whereas the non-polar solutes easily dissolve in non-polar solvent. What do you mean by the non-polar? First of all, non-polar का मैं आपको समझाती हूँ. Non-polar means if the covalent bond is formed between two like atoms, like hydrogen hydrogen, okay, nitrogen nitrogen, oxygen oxygen, it's called this molecule is called non-polar. अगर हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन टू लाइक एटम, लाइक एटम का मतलब है दो एक जैसे एटम के दरमियान, H2 है, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड हो रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन. N2 है, इसका मतलब यहाँ पर भी नाइट्रोजन के दो मोल के दरमियान जो है वो बॉन्डिंग हो रही है, दोनों लाइक हैं, एक जैसे हैं. एन एन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, H2 है, इट्स मीन यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन. सो इफ द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू लाइक एटम्स, इट्स कॉल्ड दी दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड दी नॉन पोलर. एग्जाम्पल इसकी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल O2 हो सकता है और N2 हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल. अगर यानी कि दो कोई एटम एक जैसे हों, एग्जाम्पल मैंने क्या दिया आपको, H2 यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, H एंड H2 जो है वो सिमिलर एटम्स या लाइक एटम्स के दरमियान अगर बॉन्ड बनेगा, इट्स कॉल्ड दी नॉन पोलर बॉन्ड. और अगर आप पोलर बॉन्ड देखें, इफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन टू डिसिमिलर एटम लाइक HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, तो अलग अलग जो क्या है एटम्स, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग, डिसिमिलर है, एक जैसे नहीं है, इट्स कॉल्ड दी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, व्हाट आई टोल्ड के पोलर सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, वेयर इज द नॉन पोलर सॉल्यूट इजीली डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट. अगर आप एग्जांपल देखें तो हम अगर देंगे सोडियम क्लोराइड, आप पोलर कंपाउंड, मैं आपको क्या बोला, पोलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो कि दो डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बनते हैं. अगर मैं यहाँ पे आपको सोडियम एंड क्लोराइड, सोडियम Na, क्लोराइड Cl, इसका मतलब दो डिसिमिलर एटम्स हैं सोडियम एंड क्लोराइड, तो ये क्या होगा, पोलर कंपाउंड होगा. इजिली डिसॉल्व इन वाटर, वाटर क्या है, पोलर कंपाउंड है. कैसे? H2O,
दो डिसिमिलर एटम्स हो गए, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, दो डिसिमिलर एटम्स हैं. सो द पोलर solute dissolve in polar solvent, whereas the non-polar solute easily dissolve in non-polar solvent. This is an example of solubility की जब हम बात करेंगे the nature of solute and solvent. Okay, यहाँ तक. अब हमने यहाँ पे क्या सीखा आज? We have discussed the solubility, okay, and the factor affecting the solubility. Now I'm going to summarize this. इसको मैं 2 मिनट में जल्दी से summarize कर देती हूँ. सबसे पहले what do you mean by the solubility? It is defined as the amount of a given substance that can be dissolved in a certain amount of a solvent. Amount of a given substance का मतलब है solute, जो कि dissolve हो रहा है हमारे पास क्या, किसमें, solvent में, हमारे पास given temperature पे. It's called the solubility. What are the factors that affect the solubility? Temperature, pressure only for gases, solid and liquids के लिए pressure नहीं, हम सिर्फ किसके लिए यूज करेंगे, गैसेस के लिए, क्योंकि गैसेस जो है वो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं, तो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो सकता है. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट. इफ यू टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर, if you're talking about the temperature solubility for solid in a liquid and liquid in a liquid, यानी solid and liquid की बात करें तो जब हम temperature increase करेंगे solubility will increase. If we increase the temperature solubility will also increase. When we talk about the gases, अगर हम gases की बात करें, gases in a liquid decreases with increase in temperature. अगर हम gases की बात करें तो जब हम temperature को increase करेंगे the solubility will decrease. नंबर 2 हमने देखा कि हेनरीज लॉ, प्रेशर, जब हम बात करते हैं द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, सो इसको हम डिफाइन करेंगे हेनरीज लॉ की मदद से. क्या कह रहे हैं हेनरी? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. इट मींस इफ वी इंक्रीज द प्रेशर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इज आल्सो इंक्रीज. If we increase the pressure, the solubility of a gas will also increase. It is directly proportional. It means हम एक variable increase करेंगे तो second variable भी increase होगा. If we increase the pressure, the solubility of a gas will also increases. It's called the effect of pressure on solubility. Number 3 is the nature of solute and solvent. Polar solute easily dissolve in polar solvent, whereas the non-polar solute easily dissolve in non-polar solvent. I told you what do you mean by the polar, what do you mean by the non-polar. अगर आपको डिफिकल्टी हो रही तो बुक के पेज नंबर 85 पे आपको पोलर एंड नॉन पोलर की डेफिनेशन मिल जाएगी. बट लेकिन यहाँ बस समझना जरूरी है कि नॉन पोलर मीन के हमारे पास जो है वो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो है वो क्या बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. एंड द पोलर मीन्स के हमारे पास डिसिमिलर एटम्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. ओके, सो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं. इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क. थैंक यू सो मच बेटा.